presence of the Lord. And it's a privilege to have come into the house of God. I just wanted to help you focus in spirit that we should be in the presence of God, to remember what Christ has done for us once and for all, who we do not deserve, but still Christ sacrificed himself for all of us. These are the end days, and we should not fear. We should look to God to fulfill what he has spoken and what he has left with us. Every word that he has spoken will come to pass. But we as Christians, we should encourage one another, encourage ourselves to be steadfast in the Spirit of God. Align your spirits with the Holy Spirit, that his will be done. Father, we thank you and we praise you, Lord, this evening, that you have called us to be in your presence. And here we have come. Thank you, Father, for equipping us, strengthening us. Throughout the day, you have been leading us and guiding us. Now, even as we have come into your presence to hear your word through your servant, we pray, Lord, that help us to distinguish between good and bad, to accept the good and reject the bad. But Lord, we know that you will go before us and you will make a way for us. Help us, oh Father. We commit this time, Lord, especially this evening, into your hands. The word that you're going to speak through your servant, we commit him into your hands. We commit all those who are coming, who are already here, into your hand. Speak to each one of us according to your will, O Master. Speak to each one of us. And Lord, we pray that you will encourage us, strengthen us, help us to stand steadfast in your faith. We commit everything into your hands and asking you to conduct and orchestrate the whole day, the whole evening, according to your will. In Jesus' mighty name we pray, and the people of God said amen. Let us give a big hand for the glory of God. I invite Sister Dolly and her team to come and lead us into praise and worship. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Clap your hands and worship the Lord. यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। शांति पाई है यीशु के नाम से, हालेलुया। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई यीशु के नाम से, हमने
Lord for this wonderful time of praise and worship. We surrender ourselves, Lord. God, we seek your face. The precious blood of Jesus shed on the cross. We celebrate the victory, O Lord Master. Our praises are a declaration of victory over our sickness. Our praises are declaration, victory over depression. Our praises are a declaration, O Lord, that you, God, are our banner. God, we thank you. You are the great I am. We have a greater assurance in thee, O Lord Master. We have a greater assurance in you, O Lord. We praise you, Lord Master. We praise you, Lord. We praise you, for you alone are worthy of all our praises. God, what can we render for all that you are doing in our lives, Lord? God, we bring ourselves to the throne of grace. In Jesus' powerful name, we offer our praise. Amen. Let the people of God say amen. Amen. Humbly request Brother Anil to come forward. I praise God for his presence in the church and the role that he plays at the church. मैं अनिल ब्रदर से विनती करूंगा, वो अपने व्यस्त समय में से he has taken time to agree to share the word of God. I have been praying. मैं प्रार्थना कर रहा था and God, by the grace of God, he accepted this invitation. Thank you so much. Over to Anil brother. प्रभु आप सब लोग को यहाँ पर लेकर के आया है प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, 40 दिन और रात बारिश होते गया नूह के समय में, लेकिन जब 41वां दिन आया बारिश थम गया। हालेलुया। आपके जीवन में भी इस प्रकार से बारिश और तकलीफों का समय चल रहा होगा, लेकिन 41वां दिन आएगा जिस दिन बारिश रुक जाएगा। 40 साल इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में से निकल करके आए हैं। 40 साल बीत गए, मरुभूमि में घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, परमेश्वर उनको खिला रहा है, सब कुछ है, परेशानी है, लेकिन 41वां साल आया, परमेश्वर उन लोग को कहां ले गया? वचन के देश में, कनान में लेकर के गया। और कैसा देश था? जहां दूध और मध की धाराएं बहने वाले जगह थी। बाइबल बताती है ऐसे स्थान में ले गया, ऐसे घरों में ले गया जो उन्होंने बनाए नहीं थे, ऐसे खेत जहां इतने अच्छे फल होते थे, ऐसे स्थान में परमेश्वर ले गया। मेरे प्रियो, आज आप भी उसी प्रकार की अवस्था में से होंगे। परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु आपको आपके प्रतिज्ञा के देश में, जो परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है, जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए जो वचन रखा है, परमेश्वर अपने समय में पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, यदि एक दुख और तकलीफ का भरा हुआ, अपमान से भरा हुआ एक शुक्रवार है, तो एक रविवार की सुबह है जहां एक जी उठने का, एक नए जीवन का, नए सामर्थ का, हालेलुया, एक दिन आने वाला है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहन कर देना चाहता हूं, एक दिन आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हम सब मसीह लोग इस बात को बहुत बार बोलते रहते हैं। हमारे मन में ये बात आ गई है कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज शाम के समय के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम सबको संभाला और परमेश्वर के भवन में लेकर के आया है। ये प्रभु की
अनुग्रह है, केवल और केवल प्रभु की योजना है हमारे जीवन में। परमेश्वर हम लोग को लेकर के आया। इस संसार में बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। हमसे बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ऐसे लोग इस संसार में पाए जाते हैं, लेकिन आज हम थोड़े से लोग यहाँ पर प्रभु लेकर के आया है। परमेश्वर का कुछ मकसद है, परमेश्वर का कुछ विशेष उद्देश्य है आपके जीवन में, जो परमेश्वर मुझे और आपको यहाँ पर लेकर के आया है। थोड़े समय मनन के लिए आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और पहली आयत हम देखेंगे। यदि कोई हिंदी में ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। The Gospel according John chapter 14 verse 1. जी बोलिए। आमीन। आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर आपके अद्भुत वचन के लिए। आपके वचन परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रोटी है परमेश्वर, हमारे मार्ग के लिए उजियाला और हमारे लिए दीपक के समान है। प्रभु, हम आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं। इस शाम के समय आप हमसे बातें करें प्रभु। प्रभु जी, सारे विचारों को, सारे अविश्वास को, सारी बातों को मसीह यीशु की अधीनता में हम लाते हैं। प्रभु, आप सहायता करें, आप हमारे बीच में जुम्बिश करें। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता और मदद करें। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू मन ही मन क्यों व्याकुल है? तू मन ही मन क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर दिए हैं। हम सब ने पाम संडे सेलिब्रेट किया। यीशु मसीह जो है यरूशलेम में जब प्रवेश करने के समय में सभी लोगों ने उनका बहुत ही अद्भुत तरीके से एक राजा के समान उनका स्वागत किया है। 12वें अध्याय में हम उस बात को देख पाते हैं, किस प्रकार से वहां पर लिखा है कि यीशु का यरूशलेम में होसाना होसाना करते हुए, धन्य है वे, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। बहुत ही बड़ा स्वागत कर लिया है। लेकिन उसके पश्चात जब यीशु मसीह ने फिलिपुस और उन लोग के साथी चेलों के साथ में मिल करके बातें करने के समय उन लोग को अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए उनसे बातें किया, उनसे बातें करते ये कहा, मैं सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिर कर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे उनसे चर्चाएं की होगी, अपने मन की बातें कही होगी। उसके बाद में यीशु मसीह 12वें अध्याय के 27वें पद में इस प्रकार से कह रहा है, अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है।
कह रहा कि मेरा जी व्याकुल हो रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इतना समय बिताया है, अब यीशु मसीह उन सबको अपने मृत्यु के बारे में बताते हुए उन लोगों को कह रहा कि अभी मेरा जो मन है, मेरा दिल है, व्याकुल हो रहा है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस प्रकार के परेशानी में से, बहुत सारे लोग व्याकुल होते जाते हैं। पूरा संसार लड़ाइयों की अफवाहें हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, ऐसे बीमारी के परेशानी है उनके जीवन में, बच्चों की पढ़ाई के लिए करके उनके पास समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आर्थिक समस्या में परेशान हैं, सामाजिक तौर से लोग परेशान हैं, आत्मिक तौर से परेशान हैं, व्याकुल में समय बिता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको आज खुशखबरी देना चाहता हूं। यीशु मसीह यहां पर क्या कहता है, 14वें अध्याय में हमने पढ़ा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इन सारी बातों को कहते हुए चेलों से कहा, मेरा जी व्याकुल हो रहा है। और कहा तो अब मैं क्या कहूं, परमेश्वर से ये कह दूं कि प्रभु ये घड़ी मुझसे छीन ले, मुझ पर ये समय ना आने दे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने ऐसा कहा, ये पिता अब तू अपनी महिमा अपने पुत्र में प्रकट कर। और वहां पर हम देखते हैं कि बड़ी एक भविष्यवाणी, एक आकाशवाणी हुई और वहां पर ऐसा बोला गया कि मैंने तेरे महिमा की है और फिर भी करूंगा। मेरे प्रियो, जब आप दुख तकलीफ में से होकर के जाएंगे, तब आप ये समझ लीजिए प्रभु कहता है कि मैं मेरी महिमा करूंगा। आपको दुख तकलीफ आपको नाश करने के लिए नहीं आपके जीवन में आते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं मेरी महिमा उसमें करूंगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं दानियल की किताब में। उन लोग को उस राजा ने कहा, वहां पर ऐसा एक नियम बना दिया गया, एक आज्ञा वहां पर निकाली गई कि तुम लोग को क्या करना है, इस जो राजा की मूर्ति बनाई है उसके सामने तुम्हें दंडवत करना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या कहा, हम उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे। बोले तुम लोग को आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। फिर भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो सारी पब्लिक के बीच में खड़े हैं। उन लोग को पकड़ लिया गया, ओ राजा के सन्मुख में लाए उन लोग को और कहते हैं, ये आखिरी बार हम तुम्हें कहते हैं, क्या तुम इस जो राजा का जो मूर्ति बनाया हुआ है उसके सामने दंडवत करोगे? उन्होंने कहा, हम नहीं करेंगे। हम जिस यहोवा को मानते हैं, यदि वो हमें छुड़ाने में सामर्थ्य है, यदि वो नहीं भी छुड़ाएं तो भी हम क्या करेंगे, इसके सामने दंडवत नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे कठिन परिस्थिति में से होकर के जाने के समय जब राजा ने देखा उन लोग को भट्टी में डाल दिया गया, राजा देख रहा है हमने तो 3 डाले थे, यहां पर चौथा कौन घूम रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके परिस्थिति के अंदर आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। और परमेश्वर कहता कि मैं मेरी महिमा करूंगा। और वहां पर क्या हुआ, उन लोग को बाहर निकाल दिए गए भट्टी में से। उनके शरीर में से एक जलने तक की बदबू नहीं आ रही थी। और वहां पर राजा ने क्या बोल दिया, अब से लेकर के शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में तकलीफ आने के समय में हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। परमेश्वर क्या करेगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा, लोगों के सन्मुख में यह साबित कर देगा कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरा आपसे कहना है कि जब आप व्याकुल होते हैं, आप परेशान होते हैं, तो हम एक इंसान के तौर पे किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं।
जब हम व्याकुल होते हैं एक आम इंसान की तरह, जब हमारा काम कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, चीजें फेंकने लगते हैं, किसी को मारने लग जाते हैं। कुछ होता है तो हम क्या करने लग जाते हैं? निराश हो जाते हैं। अभी अभी हमने देखा होगा, इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें एक लड़की बेचारी, उसको 5 मिनट लेट हो गई, उसको एग्जाम देने के लिए मौका नहीं मिला, उसने सुसाइड कर लिया। आप और हम इंसान होने के नाते इस प्रकार के कदम उठाते हैं। इवन बाइबल में भी हम देखते हैं यहूदा इस्करियोत, जिसने यीशु मसीह के साथ समय बिताया, इतने अद्भुत चमत्कार देखे, हजारों लोगों को खाना खिलाते हुए देखा, लाजरस को मुर्दों में से जिलाते हुए उसने देखा है, लेकिन उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में परस्वाधीन करवा दिया, बेच डाला। जब उसने देखा कि मैंने ये गलत किया है, वो व्याकुल होकर के क्या किया? उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन उसी प्रकार हम देखते हैं पतरस के जीवन में भी ऐसा ही समस्या आया। यीशु मसीह को उसने बोला कि मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, सब तुझे छोड़ेंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, आज मुर्गा बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, जब उसने 3 बार इनकार कर दिया, यीशु मसीह की ओर पतरस की आंखें मिल गई और यीशु मसीह ने उसको ऐसे ही देखा। पतरस को लगा कि नहीं, मैं वहां पर गलत हूं। उसने उस समय पश्चाताप किया, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा। बाइबल बताती है बहुत रोया हो, उसने जा करके पश्चाताप किया, परमेश्वर के सन्मुख में उसने सामर्थ को मांगा। और हम देखते हैं नए नियम में सबसे बड़ी कलीसिया परमेश्वर ने पतरस के द्वारा खड़ी करी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, आपके कठिनाई के समय में, आप व्याकुल होने के समय में, परमेश्वर क्या करेगा? आपके द्वारा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, तुम व्याकुल ना हो। परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? कहता है कि भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ पर, यीशु मसीह जो एक ही बात सिखाता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर भरोसा रखो जैसा तुम परमेश्वर के पिता के ऊपर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस्राएली लोग 450 करीब साल, 430 साल की गुलामी में रहे मिस्र में। परमेश्वर उनको लेकर के, छुड़ा करके, बड़े अद्भुत चमत्कार करते हुए उनको उस गुलामी में से छुड़ा लिया। उसके पश्चात परमेश्वर उनको लेकर के चल रहा है, अपने देश प्रतिज्ञा की ओर लेके जा रहा है। उन्होंने बड़े बड़े काम देखे हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने आश्चर्य कम करते हुए उन लोग को उस गुलामी में से निकाला। लेकिन थोड़ा से आगे जाने के बाद उन लोग के जीवन में थोड़ी तकलीफ आ गई। परमेश्वर ने वहां पर लिखा है कि फिरौन के मन को जो है कठोर कर दिया, फिर से उसको उस्काया। तो उसने क्या किया? जाकर के इस्राएली लोगों के पीछा किया। इस्राएली लोगों के पीछे उसने अपनी सारी सेना को लगा दिया। इस्राएली लोग वहां पर मैदान में, खुले मैदान में पड़े हुए हैं, उन लोग को मालूम नहीं। बाद में पता चला कि ये सेना हमारे पीछे आ रही है। आगे देखते हैं तो समुंदर है और पीछे फिरौन की सेना। किस प्रकार से जाएं? सब कुछ भूल गए कि परमेश्वर ने सारे मिस्री लोगों के पहलोठों को मार दिया था। वहां पर आग की बारिश करी थी, उसमें से हमको बचाया था। पूरे मिस्र देश के अंदर अंधकार था, लेकिन जहां इस्राएली लोग रहते थे, गोशेन देश के अंदर, वहां पर उजियाला था, वहां पर रोशनी थी। ये सब देखते हुए ये लोग जब ऐसी अवस्था में आ गए हैं,
तो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बड़ाने लगे, मूसा को कहने लगे तू हमको यहाँ क्यों मार डालने के लिए लेके आया है? अब जाए तो जाए कहाँ? मूसा भी एक बार अचंभे में पड़ गया, अब मैं क्या करूं प्रभु, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उससे बात किया, तू अपना लाठी जो है समुद्र के सामने तो उठाना। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू लोगों से कह दे, और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के अद्भुत काम को देखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वहां बड़ा अद्भुत काम किया। वहां पर समुद्र के 2 भाग करते हुए अपने लोगों को वो सूखी जमीन पर से लेकर के गया। हालेलुया। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे अवस्था में इस प्रकार से कैसे करूं? आप सोच रहे होंगे अब तो मेरे जीवन में बीमारी है, अब मैं इसमें से कैसे निकलूंगा? मेरे प्रियो, हम देखते हैं रील आजकल सब लोग देखते हैं, है ना? तो बोले सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में क्या अंतर होता है? तो बोले सरकारी अस्पताल में आप जान से जाते हो और प्राइवेट अस्पताल में आपका जो कुछ है वो सब कुछ चला जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएली लोग इस प्रकार की अवस्था में आ चुके थे, परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। मूसा ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया और परमेश्वर ने उन लोग को उस सुखी भूमि में से होकर के आगे की ओर लेकर के गया। आप भी इस प्रकार की अवस्था में होते होंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखें, व्याकुल नहीं होना है। प्रभु का वचन है, तुम व्याकुल नहीं होना, मुझ पर भरोसा रखो जैसे तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर जो हमें कभी भी इस प्रकार से छोड़ता नहीं है। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। व्याकुल होने के समय में आप किस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसा रखना है? परमेश्वर के वचन की ओर जाना है। परमेश्वर के वचन की ओर जाते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, प्रार्थना करना है, और तब परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर का वचन यशायाह में इस प्रकार से कहता है, तू आग में से होकर के जाएगा। मेरे साथ निकाले बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 2। यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय 2 पद। कोई हिंदी में मिल जाते तो कृपया मेरे लिए पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यहां पर किस प्रकार से लिखा है? जब तू जल में होकर जाए, आगे क्या लिखा है? मैं तेरे संग संग रहूंगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या हुआ? आप चलते हैं तो आपका हाथ पकड़ करके परमेश्वर संग संग चलेगा। हालेलुया। जब हम पानी में से होकर के चलते हैं, हमारे साथ यदि बच्चा है, कोई है, तो हम क्या करते हैं? उसका हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना? साथ साथ चलते हैं। जब आप समंदर में जाते हैं तब क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जाते हैं। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि जब तू जल में होकर जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और हालेलुया, नदियों में से होकर चले तुझे ना डुबो सकेगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको डूबने नहीं देने वाला है। इस्राएली लोग जब कनान देश में पहुंचने वाले थे, उससे पहले यरदन आया है। यरदन नदी पार करना है उन लोगों को। क्या परमेश्वर ने उन लोग को डूबने दिया? 40 साल वे लोग चलते गए, अभी लास्ट मोमेंट पे यरदन पार करना है। परमेश्वर ने डूबने नहीं दिया।
अपना जो संदूक था वो लोग के आगे आगे चलते हुए, परमेश्वर उनके साथ साथ चलते हुए उन लोग के लिए वहाँ भी रास्ता बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको नदी में भी डूबने नहीं देगा। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी की नदी आ जाए, लोगों को अपमान करने की नदी आपके जीवन में आ जाए, और परेशानी से भरा हुआ समय आपके जीवन में आ जाए, परमेश्वर आपको कभी डूबने नहीं देगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखते हैं? हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बताया, जब तू आग में चले तब वो तुझे जला ना सकेगी, उसकी लौ तुझे क्या कर नहीं सकेगी? जला ना सकेगी, और उसकी आंच तुझे नहीं लगेगी। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब आप इस प्रकार के आग में से होकर के जाएंगे, दुख भरे समय में से होकर के जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। कोई भी चीज तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इसलिए दाऊद अपना भजन में इस प्रकार से लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे साथ परमेश्वर है। दाऊद अपने अनुभव से कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के जाऊं तो भी मैं ना डरूंगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर इस प्रकार से आगे की ओर लेकर के जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ रहने के लिए उसने वायदा किया है। हमने कल भी सुना, 365 दिन परमेश्वर ने वचन में हमको ये प्रतिज्ञा दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हमें और मुझे और आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। 2013 में जब सुजना को ऐसे परेशानी में से होकर के गुजरना पड़ा, 2006 में जब उसको एक विंडो जो अपना जो किचन की जो कबर्ड था उसका शटर सिर में लगने के कारण इस प्रकार से वहाँ पर उनको चोट लग गया, और उनका जो है जो ब्रेन का फ्लूइड होता है वो लीक करना शुरू कर दिया। हम परेशान थे, अब क्या करें। सभी डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, हमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपको स्कल खोलना पड़ेगा, ये इस प्रकार से पूरा स्कल खोलना होगा, सारा फ्लूइड बाहर रखेंगे और फिर हम उसको ठीक कर पाएंगे। और इस प्रकार से बहुत ही रिस्की था। समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से होगा। दोनों बच्चे छोटे हैं। हम लेकर के अस्पताल गए। परमेश्वर जो है हमें कभी छोड़ता नहीं है। जब हम अस्पताल में गए, हमारे लिए वहां पर डॉक्टर जो है, जैसे मैंने डॉक्टर को सुबह फोन किया तो डॉक्टर एकदम सीनियर डॉक्टर था गुजरात का, उसने देखे पर्सनल कॉल मेरा उनके पास किया, उन्होंने उठाया, ने बोला ठीक है आप आ जाइए, ये राजस्थान हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाए, मैं फोन कर देता हूं। परमेश्वर आपके लिए फेवर करता है। जब हम लोग वहां गए, कोई भी हमारी जान पहचान नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट में से परमेश्वर ने ऐसी एक बहन को खड़ा किया, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सुविधा हमारे लिए कर दी। बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर ने सब कुछ होने के लिए सब कुछ किया। फाइनेंशियली क्राइसिस थे हमारे पास, बच्चे छोटे हैं, लेकिन हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर ने सुजना को चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कठिनाई, परेशानी, तकलीफ लेकर के आने के समय में, जैसे हमने वचन में पढ़ा, तुझे आंच ना लगेगी, ना तुझे जला सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए वायदा किया है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, यदि आज आप व्याकुल है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा, हालेलुया, वो करने वाला है।
अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, बहुत ही एक पैसे वाला, बहुत ही एक अमीर व्यक्ति, और साथ साथ में लिखा है धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, सुबह शाम दुआ बंदगी करने वाला व्यक्ति, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने वाला एक इंसान। एक समय आया, सब कुछ उसका खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया है। उसके शरीर में खुजली का बीमारी हो गया, उसको शरीर पूरा खुजा रहा है, चमड़ी निकल रहा है, राख में बैठ गया और अपने शरीर को खुजा रहा है। इवन उसकी पत्नी उसको कहती है कि तू अभी परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा। लेकिन अय्यूब ने कहा, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा रखा। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालें अय्यूब का पुस्तक 19वां अध्याय और 25वें पद में किस प्रकार से अय्यूब अपनी बात को रखता है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। आप में से मुझे और आप में से कितने लोगों को ऐसा निश्चय है कि प्रभु मुझे छुड़ाएगा? हालेलुया। कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मुझे निश्चय है प्रभु मुझे छुड़ाएगा? और आगे क्या लिखते हैं? और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश होने के जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। कहता है कि अंत में परमेश्वर पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरे प्रियो, आपके पास सब कुछ यदि खत्म हो जाता है, आपकी हेल्थ नहीं अच्छी रहती है, आप बहुत ही परेशानी में आ जाते हैं, फिर भी उस बात को याद रखें, जैसे अय्यूब ने कहा, अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा और कहता है कि मेरे शरीर में, मतलब मेरे इस प्रकार मेरे खाल को नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कैसे कह रहा है, कैसा विश्वास है? मेरी खाल नष्ट हो रही है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे दोस्त लोग आकर के मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, सबसे आपको मैं बताऊं, यीशु मसीह को भी अपने ही लोगों ने उसको ताड़ना दी, अपने ही लोगों ने उसको दुख दिया था। सबसे ज्यादा तकलीफ जो है आपको अपने लोग देते हैं। यहां पर अय्यूब के जीवन में भी हम देखते हैं, उसके दोस्त लोग आकर के उसको भला बुरा कहते हैं। सब कुछ कहने के बावजूद भी सहन कर रहा है वो, फिर भी कह रहा है कि मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। मेरे खाल का इस प्रकार नष्ट हो जाने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? इस शरीर में होकर कितना उसको विश्वास है, शरीर में होकर के उसका परमेश्वर का मैं दर्शन पाऊंगा। प्रभु का वचन में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर का उसके अद्भुत कामों के लिए। जब हम लोग न्यूजीलैंड से वापस आ रहे थे 23 में, हमें नहीं मालूम था, हम सिडनी में लैंड हुए, ले ओवर टाइम काफ़ी था, सफिशिएंट था, लेकिन कोविड के चलते वहाँ पर स्टाफ शॉर्टेज होने से बहुत से जो है चेक इन के लिए लंबा लाइन लगा था, किसी को आगे जाने नहीं दे रहे थे। हमारा समय आ गया, लास्ट कॉल हो गया, अब क्या करें? हम लोग जबरदस्ती वहां जा करके गए। गेट बहुत दूर था, हम लोग काफी चलते हुए गए। जा करके बोला, हमने गेट पे जाके एंट्री के लिए हमने बोला कि भाई हमारा ऐसा, और सबसे बुरी बात ये हो गई थी हमारे साथ, हमारे पास बोर्डिंग पास नहीं था, क्योंकि बोर्डिंग पास हम ले ही नहीं पाए थे।
जो फ्लाइट का जो एयरलाइंस चेंज होने की वजह से हम नहीं ले पाए थे, और हम लोग अननोन थे उस बातों से। हमने जाकर के उनसे बात किया। आप यकीन नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा मैं सोच रहा हूं कि नहीं हुआ होगा। वहां पर एक बंदा आया, जो वहां पर दो बहनें थी, उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए, अभी गेट क्लोज हो गया है। वहां पर एक बंदा आकर के खड़ा हो गया। उसने कहा क्या हुआ? हमने बताया उसको ऐसा ऐसा हुआ। उन्हें तुरंत फोन लगाया। हमारे लिए करीब करीब 35 मिनट फ्लाइट जो है डिले हो गई, और हम लोग को उसमें एंट्री दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर जो है अपने भय मानने वालों के लिए करता है। आपको उस बात को भूलना नहीं है। जैसे उस इस्राएली लोग भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे हमको छुड़ाया था, यहाँ चेले लोग भूल गए कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अद्भुत अद्भुत काम किया था। हम भी कभी भूल जाते हैं। चंगे हो गए, 5-10 साल हो गए, नौकरी मिल गई, 5-10 साल हो गए, हम प्रार्थना करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, सब कुछ भूल करके हम कहते कि अभी हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के प्रति हमें समर्पित होना है। डॉक्टर मॉर्गन, जिन्होंने कैंसर की दवाई की खोज की, उनको अवार्ड दिया जाने वाला था। अपने स्थान से उनको जाना था, जिस जगह पर उनको अवार्ड देना था, शिकागो में। उन्होंने अपनी जगह से फ्लाइट लिया और क्लाइमेट अच्छा नहीं था, वेदर अच्छा नहीं था, आंधी तूफान, उसके चलते शिकागो से पहले ही कोई जगह पे उनकी फ्लाइट को लैंड करना पड़ा। करीब करीब 4-5 घंटे का रास्ता बच गया होगा। उनको शिकागो उस फंक्शन में पहुंचना था। उन्होंने टैक्सी किया, ड्राइवर को बोला तू जल्दी थोड़ा स्पीड से लेकर के चलना। ड्राइवर ने गाड़ी को चला दिया, स्पीड में जा रहे थे। वेदर अच्छा नहीं था, ये लोग स्पीड में चलते गए, रास्ता भूल गए। काफी दूर तक आगे जाने के बाद उनको मालूम चला कि हम लोग रास्ता भूल गए। डॉक्टर मॉर्गन ने ड्राइवर से कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम गाड़ी थोड़ा, यहाँ कोई घर दिखता है तो उस जगह पे अपना गाड़ी को पार्क करो, हम जाएंगे उस घर में। यदि वो लोग हमको इनवाइट करेंगे तो हम एक कॉफ़ी थोड़ा पी करके, थोड़ा रेस्ट करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। ड्राइवर ने गाड़ी रोका। एक घर था, वहां पर जाकर के उन्होंने खटखटाया। एक महिला अंदर से निकल रही है। उसने ऐसे अनजान व्यक्ति लोगों को देख करके वो चकित हो गई। फिर भी उसने कहा, उनके कपड़े गीले थे तो उनको अंदर आने के लिए बोला, उनको बैठने के लिए कहा। जा करके उनने उनके लिए कॉफ़ी बनाया, कॉफ़ी ला करके उनको दिया। फिर बोलती है आप लोग बैठिए, थोड़ी देर कॉफ़ी पीजिए, मेरा अभी प्रार्थना का समय हो रहा है, मैं प्रार्थना करके थोड़ी देर के बाद आपके पास आती हूँ, फिर मैं थोड़ा खाना बनाऊं और आप लोग फिर खाना खाते हुए फिर जाइएगा। ऐसा करके वो अपने अंदर प्रेयर के लिए चली गई। डॉक्टर मॉर्गन वो सब देख रहे हैं। प्रार्थना करने के समय उनने देखा तो कमरे में खाट के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ है। वो समझ गए कि कोई बीमार व्यक्ति है, यहां पर लेटा हुआ है। जब वो बहन प्रार्थना करके वापस आई, डॉक्टर मॉर्गन ने उनसे पूछा कि ये कौन है? बोले ये मेरा बेटा है। बोले क्या हुआ?
तो बोले हमने बहुत कुछ उसके लिए दवाइयाँ करी, डॉक्टर्स को इलाज करवाए। डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर है। हमारे पास वो महिला ने बोली जितना भी था हमने सब कुछ खर्च कर दिया, दवाइयाँ बहुत खिलाई लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर मॉर्गन जो थे वो परमेश्वर में मानने वाले नहीं थे, वो नास्तिक प्रकार के ऐसे इंसान थे। उस बहन ने बोला कि अभी हमने मेरे बेटे को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया है, परमेश्वर उनको चंगा करे तो ठीक है। डॉक्टर मॉर्गन ने उस समय बोला, हालांकि मैं परमेश्वर में नहीं मानता हूं, लेकिन आज मैं मानता हूं कि परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा कि आज मैं कबूल करता हूं कि परमेश्वर है। डॉक्टर मॉर्गन उस लड़के को अपने अस्पताल में ले गए, जितना उनसे दवाइयाँ करना था, क्योंकि उन्होंने ही वो कैंसर की दवाई तो खोज की थी, और परमेश्वर ने उस लड़के को चंगा किया। मेरे प्रियो, आप कैसी भी अवस्था में से हो करके जाने वाले हो, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर एक बात को जानता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है, मैंने तेरा चित्र मेरी हथेली में बना रखा है। हम और आप ऐसा सोचते हैं प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। जब हम परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर है ही नहीं करके हम बोल देते हैं। हम कहते कि यदि हम खत्म हो जाए तो अच्छा है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत दिलाता है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, ऐसा मुझ पर भी भरोसा रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अंतिम बात में आपसे बताना चाहता हूं। यूहन्ना 14वां अध्याय 18वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 14 वर्स 18। यहां पर क्या लिखा है? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि हमारे अपने लोगों ने हमें छोड़ दिया, कोई हमारी परवाह नहीं करता है, कोई हमें पूछता नहीं है। मेरे प्रियो, कभी ऐसा समय आता है, यीशु मसीह के जैसे हमने कभी दुख नहीं उठाया, अय्यूब के समान हमने कभी भी ऐसी परेशानी में से होकर के नहीं गए हैं। फिर हम क्यों ऐसा कहने की जरूरत है? हमें क्यों दुखी होने की जरूरत है? हमें क्यों व्याकुल होने की जरूरत है? यीशु मसीह ने यशाया में कहते कि उसने हमारे सारे अपमान, सारे रोग, सारे अपराध उसने हम अपने ऊपर ले लिए। फिर हमें क्यों परेशान होने का? फिर हमें क्यों इस प्रकार से चिंता में रहने का? यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं, और 27वें पद में इस प्रकार से लिखता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और यहां पर फिर से कहता है, तुम्हारा मन ना घबराए, मतलब तुम्हारा मन ना व्याकुल हो और ना डरे। यदि आज आप डरे हुए हैं, आपकी बीमारी के कारण डरे हुए हैं, आपकी आर्थिक समस्याओं को लेकर के डरे हुए हैं, आपका बॉस आपको नौकरी में परेशान कर रहा है, आपके स्कूल में आपके टीचर्स जो है आपके साथ पार्शियलिटी करती हैं, आपके कॉलेज में स्टूडेंट लोग आपको इग्नोर करते हैं, मेरे प्रियो, आपको मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर कहता है, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन ना डरे। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू मुझे सामर्थ दे प्रभु, ताकि मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया।
मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, अभी तक आपने हमारी सहायता किया परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे इस संसार देता वैसे नहीं। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस वायदे के लिए प्रभु। आप हमारे संग चलने के लिए वायदा किया प्रभु, मैं शांति देने वाला परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं, हम आप पे भरोसा रखते हैं प्रभु। तो हमारी सहायता और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। I believe God dealt with your hearts. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके हृदयों के साथ व्यवहार किया होगा इस वचन के द्वारा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे साथ व्यवहार करें। आज शाम परमेश्वर जब हम अपने अपने घरों में जाए, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमारे साथ वातन व्यवहार करे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक अनुभव के साथ छुड़ा हुआ तेरा वचन, ओ परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर हमें बहुत बड़ी आशा की ओर प्रोत्साहित करता है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितनों को आपने पसंद किया है, जितनों को आपने बुलाया है यहाँ, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक एक परिवार यहाँ से आशीषों की परमेश्वर पिता भरमार लेके जाए। हम प्रार्थना करते हैं उनके सुने हुए वचन उनके जीवनों में परमेश्वर पिता
प्रोत्साहन का कारण बने। और प्रभु प्रार्थना करते हैं तुझ में प्रेरित रहने के लिए सहायता करे। परमेश्वर पिता परिवारों में बहुत बड़ी आशीष उंडेलिए प्रभु जी, संतानों को आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। बीमारियों से चंगाई मांग लेते हैं प्रभु जी, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हर एक नकारात्मक बातों को यीशु के नाम से हमारे मनों से, हमारे परिवारों से दूर करते हैं प्रभु जी। अंधकार की शक्तियों पे जय मांग लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हुए हम सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए नम्र हृदय से परमेश्वर पिता उस क्रूस के ऊपर मनन करने पाए। नम्र हृदय से परमेश्वर पिता स्मरण करे कि परमेश्वर तो क्रूस लिए चल पड़ा है। नम्र हृदय से परमेश्वर पिता हर रोज इस अपेक्षा के साथ यहाँ आने पाए कि प्रभु मुझसे आज बात करेगा। नम्र हृदय के साथ हर रोज जब हम यहाँ बैठते हैं परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे, ये प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड यू स्पीक टू अस ओ लॉर्ड मास्टर, चेंज अस ओ लॉर्ड फ्रॉम इनसाइड। वी वांट टू बी यूजफुल, वी वांट टू बी प्रोडक्टिव। परमेश्वर हम परमेश्वर पिता तेरे इस्तेमाल आने सके, इस योग्य हमें बना प्रभु जी, हम तेरे इस्तेमाल आने सके, हम फलदायक विश्वासी बनने सके, इस काबिल हमें बना परमेश्वर। तेरे दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। तो अपने लहू से आप उन्हें ढक लीजिए परमेश्वर। हर हफ्ते परमेश्वर पिता हर 10-15 दिन में एक बार वो मुसाफरी करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हर एक मुसाफरी में यीशु उनके साथ रहने पाए, यहोवा का हाथ उनके पक्ष में होने पाए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर यहाँ एकत्रित एक एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ और सहभागिता हमारे साथ और पृथ्वी पे हर एक विश्वासियों के साथ राजाओं के राजा के आगमन तक बनी रहे। सारे मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन।